Assalamualaikum class 6. I hope you all are fine and good at your places. Today we are going to start our second term and in English our first lesson is The Echoing Green. This is the poem written by William Blake. Echo का मतलब होता है गूंजना. यहाँ पे echo के साथ ing आ रहा है, ये gerund बन गया है, तो इसका मतलब होगा गूंज रहा है. ग्रीन कहते हैं हरियाली को. The echoing green का मतलब होगा हरियाली गूंज रही है. So I am reading it for you. Listen it carefully. The sun does arise. सूरज तुलू होता है and make happy the skies और आसमानों को खुश करता है. The merry bells ring. खुशी की घंटियां बजती हैं to welcome the spring. बाहर को खुश आमदीद कहने के लिए. The skylark and thrush. आसमान का लवा और फिर उतरना. The birds of the bush. झाड़ियों के परिंदे sing louder around. इर्द गिर्द ऊंचा गाते हैं to the bells cheerful sound. उन घंटियों के लिए जो खुशगवार सुनाई देती हैं. While our sports shall be seen. इसी दौरान हमारे खेल भी देखे जाएंगे on the echoing green. हरियाली के गूंजने में. Old John with white hair. बूढ़ा जॉन सफेद बालों के साथ does laugh awake care. बगैर किसी परवाह के हंसता है. Sitting around the oak. बरगद के दरख्त के नीचे बैठे. Among the old folk. पुराने बूढ़े या पुराने लोग के दरमियान. लोग कहते हैं पुराने कल्चर को या ट्रेडिशन को, उन सब चीजों को मिलाकर जो होता है उसे हम फोक के जुमरे में लेते हैं. They laugh at our play. वो हमारे खेल पर हंसते हैं. And soon they all say. और जल्द ही वो सब कहते हैं. Such were the joys. ये सभी खुशियां थी. When we all girls and boys. जब हम लड़के और लड़कियां in our youth time were seen. जब हम अपनी जवानी के टाइम में देखे जाते थे. On the echoing green. गूंजती हुई हरियाली में. And this is the last stanza of the poem. Till the little ones weary. उस वक्त तक जब तक छोटे थक नहीं जाते थे. No more can be merry. और कोई भी खुशियां नहीं थी. The sun does descend. जो सूरज था वो गुरूब हो जाता था. And our sports have an end. और हमारे खेलों को एक आखिर मिलता था. Round the laps of their mothers. अपनी माओ की गोदों के इर्द गिर्द लिपटते हुए. Many sisters and brothers. बहुत सारे बहनें और भाई. Like birds in their nest. जैसे परिंदे अपने घोंसलों में. Are ready for rest. आराम के लिए तैयार होते हैं. And sport no more seen. और कोई खेल नहीं देखा जाएगा. On the darkening green. अंधेरे के हरियाली के गहरे होने में. डार्कनिंग ग्रीन का मतलब होगा गहरा. डार्कनिंग को कहेंगे अंधेरा होना या गहरा होना. यानी जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा, वो होगा ऑन द डार्कनिंग ग्रीन. इसका यह मतलब हुआ कि हरियाली के गहरे होने पर. नाउ यू कैन सी डिफिकल्ट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स ऑन योर स्क्रीन. अराइज का मतलब है राइज और गेट अप. लार्क का मतलब है सिंगिंग बर्ड्स. थर्श the meaning of thrush is a song bird यानी गाना गाने वाला परिंदा. cheerful in good spirits खुशियां. echoing is resound या फिर गूंज रहा यानी कि गूंजना. oak कहते हैं kind of trees yielding harder timber यानी कि जो बहुत पुराने दरख्त होते हैं ना उन्हें oak trees कहा जाता है यानी कि बरगद के दरख्त. folk कहते हैं लोगों को यानी people या लोग को. weary is very tired बहुत थका हुआ. descent is go down. laps hanging part of flap of garment यानी कि गोद. laps को हम गोद कहते हैं. I hope you can understand all the meanings and have listened my reading. Read it twice. We'll meet in our next video. Thank you. Take care. Now class 6th, moving on to exercise. These are the questions of the exercise, and question number 1 is, what time of the day is it at the beginning of the poem? आपसे पूछा जा रहा है कि वो दिन का कौन सा वक्त था जब नज़म की शुरुआत हुई. The answer is at the beginning of the poem the sun is rising, so it is early in the morning. नज़म की शुरुआत में सूरज तुलू हो रहा था तो ये सुबह का वक्त था.
Question number 2 is, which words from the first stanza create a cheerful mood? वो कौन से अल्फाज हैं पहले स्टेंजा में जो खुशगवार मूड को जाहिर कर रहे हैं? The answer is, the words which create a cheerful mood are happy, merry, welcome, sing and cheerful. Question number 3 is, in the second stanza, what are the older people doing and what does it make them remember? वो आपसे पूछ रहे हैं दूसरे स्टेंजा में यानी दूसरे बंद में नज़म के बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं और उन्हें किस चीज की याद आ रही है? द आंसर इज, द ओल्डन पीपल आर लाफिंग एट द चिल्ड्रन प्लेइंग. बूढ़े लोग जो हैं वो बच्चों के खेलने पर हंस रहे हैं. इट मेक्स देम रिमेम्बर, ये उन्हें याद दिलाता है. व्हेन दे यूज टू प्ले हैप्पीली ऑन द ग्रीन, जब वो हरियाली में खुशी खुशी खेलना पसंद करते थे या खेलते थे, इस चीज की वो उन्हें याद दिलाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन द फाइनल स्टेंजा व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट? आखिरी बंद में दिन का कौन सा वक्त था? द आंसर इज, इन द फाइनल स्टेंजा आखिरी बंद में द सन इज गोइंग डाउन, सूरज गुरूब हो रहा है, सो इट इज इवनिंग, तो ये शाम का वक्त है. Question number C next is, in the final stanza what happens to the children? आखिरी बंद में बच्चों के साथ क्या हुआ? The answer is, the children are tired and ready for the rest, so they sit with their mothers instead of playing. बच्चे बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो आराम के लिए तैयार थे, इसलिए वो अपनी माओ की गोद में बैठ गए या माओ के पास जाकर बैठ गए खेलने के बजाय. So, the next question is, in the final stanza, the poet creates an interesting image by comparing the mothers and her children to a type of animal. What animal are they compared to? What are they doing? What is the effect of using this comparison? वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इस इमेज में क्या हुई है और जो शायर है वो माओ को और उनके बच्चों को कौन से ऐसे जानवर से मिला रहा है और जो ये कंपैरिजन है उसका असर क्या होता है. सो द आंसर इज, द पोएट कंपेयर्स द मदर एंड हर चिल्ड्रन टू बर्ड्स इन द नेस्ट. शायर जो है माओ को उसके बच्चों को घोंसलों में मौजूद परिंदों के साथ कंपेयर कर रहा है. द चिल्ड्रन सिट विद देयर मदर्स, बच्चे अपनी माओ के साथ बैठे हैं. द इफेक्ट ऑफ द कंपैरिजन इज दैट वी कैन पिक्चर देयर चिल्ड्रन विद देयर मदर्स गेटिंग कंफर्ट, वार्मथ एंड फीलिंग सेफ. अब कंपैरिजन का यानी कि कंपेयर करने का असर ये है दोनों में कि इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी माओ के साथ बैठे हैं और अपनी माओ से आराम, हिफाजत जो है और जो उनकी मोहब्बत की गरमाइश है उसको महसूस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर जी इज, मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम. उन जानवरों की लिस्ट बनाएं जो कि इस नज़म में मेंशन है. आंसर इज, बर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, द स्काईलार्क एंड थर्श आर नेम्ड. परिंदे जो है इसमें मेंशन किए गए हैं इस नज़म में और उनको नाम दिया गया है स्काईलार्क का और फिर थर्श का. Question number 8 is, make a list of sounds mentioned in the poem. Which stanza doesn't have any sound mentioned in it? वो कह रहे हैं कि आप वो sentences बताएं जिसमें एक तो voices मौजूद है और एक ऐसा stanza बताएं जिसमें किसी भी किस्म की कोई voice मौजूद नहीं है. तो हम लिस्ट बनाते हैं. आंसर है, a list of sounds are bell ringing, bird song, laughter, voices of old flock, the echoing green. अब आवाजें कौन कौन सी हमें सुनाई देती हैं? घंटियों के बजने की, परिंदों के गाने की, हंसने की, बूढ़े लोगों की आवाजों की, हरियाली के गूंजने की. एंड नो साउंड्स आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा, और पहले बंद में कोई भी आवाज जो है वो मेंशन नहीं की गई. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आर क्वेश्चन नंबर आई. What do you notice about the last line of each stanza? Say how they are similar and how they are different.
वो पूछ रहे हैं कि हर बंद का जो आखिरी लाइन है वो आपने नोटिस किया है कि कैसे सेम है और वो कैसे मुख्तलिफ है. सो द आंसर इज द लास्ट लाइन ऑफ ईच स्टेंजा इज ऑलमोस्ट द सेम. हर बंद की आखिरी लाइन तकरीबन एक जैसी ही है. इन स्टेंजाज 1 and 2 पहले और दूसरे बंद में द सेम वर्ड्स आर यूज्ड. एक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है. इन द थर्ड स्टेंजा तीसरे बंद में द वर्ड echoing इज रिप्लेस्ड विद द वर्ड डार्कनिंग. आखिरी बंद में जो द echoing ग्रीन था पहले वर्ड, उसको उन्होंने किसके साथ चेंज किया है, रिप्लेस किया है डार्कनिंग के साथ. क्योंकि जब सुबह का वक्त था तो वो हरियाली थी और शाम के वक्त में echoing को जो है उन्होंने किसके साथ चेंज कर दिया, डार्कनिंग के साथ. क्वेश्चन नंबर जे यू कैन सी ऑन योर बुक्स पेज नंबर 48 is how does the difference in the last line affect the mood of the end of the poem. कि आखिरी जो लाइंस हैं वो आपके मूड पर पोएम के आखिर में क्या तासुरात लेकर आती हैं. आंसर यू कैन स्क्रीन ऑन योर स्क्रीन. In the last lines of the poem, the poet describes the ending of the day which changes the poem's mood. आखिरी लाइंस में जो है शायर दिन के खत्म होने का बता रहा है जिससे आपका जो मूड है वो चेंज हो रहा है, यानी पोइट का मूड चेंज हो रहा है. ऑल द फन गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव एंड. तमाम खेल खुशियां और सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है. लाइक बर्ड्स चिल्ड्रन ऑल्सो गो देयर होम्स फॉर रेस्ट. जैसे जो परिंदे और उनके बच्चे हैं वो भी अपने घोंसलों में आराम के लिए जा चुके हैं. द डार्कनेस ऑफ द इवनिंग कवर्स एवरीथिंग. शाम का अंधेरा हर चीज को कवर कर रहा है. ठीक हो गया. आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं. क्लास 6 आपको ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बुक के पेज नंबर 48 पे मिलेंगे. आंसर्स मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं. आप सारे आंसर्स को अपने स्क्रीन पे इजीली देख सकते हैं. ठीक है. अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द वर्ड्स, यानी वर्ड्स की डेफिनेशंस जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. डॉडल इसकी डेफिनेशन को हम मीनिंग्स में भी ले सकते हैं कि हम एक वर्ड की तारीफ करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है. तो डॉडल का मतलब है स्लोली वेस्टिंग टाइम, यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता और वक्त का जाया होना. होबल है एज इफ ओल्ड और लेम, बूढ़ा या फिर कमजोर. लंप कहते हैं एज इफ लेम, जैसे कि बूढ़ा या जैसे कि कमजोर. पेस्क होता है विद स्लू ऑन रेगुलर स्टेप्स, बहुत आराम से रोजाना के तौर पर. फ्लॉइड कहते हैं स्लोली या लेबरियसली, आहिस्ता से यहाँ पे बहुत खूबसूरती से. रैम्बल होता है अक्रॉस द कंट्री साइड फॉर प्लेजर, आराम के लिए पुरसकून के लिए. कंट्री साइड कहते हैं गाँव को. ठीक है. रोम होता है विदाउट पर्पस एमलेसली, किसी भी मकसद के बगैर जो है इसका ये मतलब है. शफल होता है ड्रैगिंग वंस फीट, किसी के पांव को यानी किसी की टांग खींचना. स्लॉच कहते हैं ड्रॉपिंगली एंड लेजीली, बहुत ही सुस्ताना तरीके से आराम से. स्ट्राइड कहते हैं विद लॉन्ग स्टेप्स पर्पसफुली, बहुत ज्यादा मकसद के साथ, जोशो जज्बे के साथ. मार्च होता है इन अ मिलिट्री मैनर स्मार्टली, जैसे मिलिट्री में मार्च की जाती है उसका यहाँ पे ये एक्सप्लेन, मार्च का ये मतलब एक्सप्लेन किया गया है. आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट होती है. नेक्स्ट जो है अब जो इसके बाद है वो आपकी समरी रह गई है. इसके बाद मैं आपको समरी एक्सप्लेन करती हूँ. देन दिस चैप्टर विल बी क्लोज्ड इंशाल्लाह. टेक केयर.